آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نوجوان شاعر, ایک ایسے خوبصورت شاعر جن کا کلام بہت ہی عمدہ, بہت ہی اچھا, اور اساتذہ کے بقول ان کی عمر سے شاید کوئی 20-22 سال آگے کا کلام اچھا لکھتے ہیں کہ سننے والا ایک دفعہ پھر سے دوبارہ ان سے گزارش کرتا ہے کہ دوبارہ سنائیے. اور یہاں پر میں کسی بھی حوالے سے ایگزیگریشن سے کام نہیں لے رہا, یہ ایک درست بات ہے. ان کا ایک خوبصورت شعر آپ تمام احباب کے گوش گزار کیے دیتے ہیں. آپ لکھتے ہیں جس شے کا جو مقام تھا اس کو وہی کہا, ہم نے چراغ کو بھی نہیں روشنی کہا. جناب محمد اویس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس بھائی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور گناگو مصروفیات ہیں آپ کی, ظاہر ہے ہم جانتے ہیں سٹڈیز وغیرہ کے مصروفیات تو شاداب چلتی رہتی ہیں, لیکن آپ کا بہت شکریہ, اردو پوائنٹ کا بہت شکریہ کہ ایک ایسا پروگرام چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, اور میرے خیال میں اس کو آپ کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ. العزیز آپ جیسے دوست ہیں ان کی محبت ہے کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں. ہم لوگ تو آپ کا کلام سنا کرتے رہے جب لوگ ڈیبیٹس وغیرہ کیا کرتے تھے, آج سے 2-3 سال پہلے کی یہ بات ہے, تو بڑا اٹریکٹیو ہوتا تھا ہر طرح سے, ایک بڑا پیارا کینوس تھا آپ کے پاس. سب سے پہلی بات جو ہے وہ اسی حوالے سے آپ سے پہلا سوال میرا ہوگا کہ یہ جو کینوس کا جو فائنلائزیشن ہے کہ آپ نے کس چیز میں اپنی طبع آزمائی کرنی ہے, غزل میں یا نظم میں, یہ کیسے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ نے کیسے کیا؟ میرے خیال میں جو پریکٹس ہوتی ہے نا انسان کی, وہ پریکٹس انسان کو بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, کسی بھی لحاظ, کوئی بھی لحاظ ہو, کوئی بھی جگہ ہو, کوئی بھی کینوس ہو, کسی بھی طریقے کا پروگرام ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, اس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں, جیسے جیسے آپ قدم اٹھاتے ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے اس معاملے میں یہ مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو میں نے کیسے کور کرنا ہے, وہ بھی آپ کو ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے. جب مشکل آتی ہے تو اس کا حل تو مل ہی جاتا ہے انسان کو. تو میرے خیال میں نظم جو ہے اس کے اندر جو احساس ہے نا, اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے باہر لا سکتے ہیں غزل کے کمپیریزن میں. غزل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو شعر ہوتا ہے نا, ظاہر ہے اب شعر کل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک غزل کل ہوتی ہے, پھر غزل کے اندر شعر بھی کل ہوتا ہے. صحیح. اب نظم کا یہ ہوتا ہے کہ نظم کے اندر مصرع اپنے آپ میں کل ہوتا ہے, لیکن جب وہ نظم کے ساتھ ملتا ہے تب اس کی جو ایک خصوصیت ہوتی ہے نا تب ظاہر ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور یہی خوبصورت بات ہے, وہ جو ایک ربط ہوتا ہے نا نظم کا, پوری نظم وہی خوبصورت بناتا ہے نظم کو. اور میرے خیال میں میرے لحاظ سے میں ربط کے اوپر ہی چلنا چاہتا ہوں. اچھا, ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں بڑی پیاری بات کہ جو غزل ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسے فلیٹس کی عمارت ہے جس میں ہر فلیٹ میں ایک ڈفرینٹ خاندان بس رہا ہے, اور جو نظم ہے وہ مکمل طور پہ ایک ہی خاندان ہے لیکن وہ سٹوریز میں رہ رہے ہیں, تو وہ سب آپس میں کنیکشن جو ہے وہ رکھتے ہیں. اچھا, خوبصورت باتیں آپ سے چلتی رہیں گی. پروگرام کا فارمیٹ ہے کلام شاعر بزبان شاعر, تو سب سے پہلے آپ ہمیں غزل سنائیں گے یا نظم سنائیں گے؟ میری ویسے خواہش یہ ہوگی کہ آپ جو غزل ہمیں سنا رہے تھے کچھ دیر پہلے, اگر وہ ہم سنیں اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں. چلیں شاداب, جیسے آپ چاہیں غزل سے انشاءاللہ. جناب, غزل ایک. جاگتی رات اکیلے میں سڑک پر نکلا, جاگتی رات اکیلے میں سڑک پر نکلا, چاند نکلا تو کوئی میرے برابر نکلا. بہت اچھے. جاگتی رات اکیلے میں سڑک پر نکلا, چاند نکلا تو کوئی میرے برابر نکلا. ایک گاڑی جو عقب سے میرے نکلی آگے, ایک گاڑی جو عقب سے میرے نکلی آگے, ایک سایہ میرے اندر سے گزر کر نکلا. ایک سایہ میرے اندر سے گزر کر نکلا. اور پہلے بڑھتے تھے فقط ہاتھ گریبان تلک, پھر کسی روز کسی جیب سے خنجر نکلا. میں جو ڈوبا, اچھا دوبارہ سنائیے. پہلے بڑھتے تھے فقط ہاتھ گریبان تلک, پھر کسی روز کسی جیب سے خنجر نکلا. کیا کہنے. اور میں جو ڈوبا تھا اکیلا تھا بڑے دریا میں, اور ابھرا تو میرے ساتھ میں لشکر نکلا. میں جو ڈوبا تھا اکیلا تھا بھرے دریا میں, بہت اچھے, اور ابھرا تو میرے ساتھ میں لشکر نکلا. آگے ڈر تھا کہ اردو میرا نہ جانے کیا ہے, وہ میرے سامنے آیا تو میرا ڈر نکلا. بہت اچھے, بہت اچھے, کیا اچھا شعر ہے, یہ دوبارہ سنائیے. آگے ڈر تھا کہ اردو میرا نہ جانے کیا ہے, وہ میرے سامنے آیا تو میرا ڈر نکلا. بہت اچھے. ویسے بھی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو سینئرز ہیں ان کی اجارہ داری کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا شاعر بننا ہے, بڑا شاعر بننا ہے, تو آپ کو سینئرز کے ساتھ
जुड़ कर रहना पड़ता है, और इस हवाले से कई और लोगों के जहनों में भी बातें होती हैं, और कुछ लोग इसको खरापात भी कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि अच्छी चीज़ कही जाए अगर, तो क्या आपको फिर ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी के साथ अपना पल्ला बांध के रखें ताकि आप आगे निकल सकें? बड़ा एक डायरेक्ट सा सवाल है। खैर मेरे ख्याल में ये जो एक संजीदगी का एक आलम होता है ना, तो सीनियर्स के साथ एक तो आपको अगर आप जुड़ कर रहना चाहते हैं, वो तो आपकी एक ख्वाहिश है ना, जुज़वी ख्वाहिश है आपकी, ठीक है, आपकी इनफरादी ख्वाहिश है, फिर तो आप जुड़ के रहें। सही। अगर आपके पास कोई घिनौना उसके पीछे मकसद है तो मेरे ख्याल में उससे गुरेज ही करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि शेर बड़ा होता है, बिल्कुल सही। जो इंसान कहता है ना वो बड़ा होता है। बिल्कुल सही। अगर वो जो इंसान कह रहा है किसी की वजह से कह रहा है फिर गलत है। अगर वो अपनी वजह से कह रहा है और अपनी वजह से मुआशरे को देख के कह रहा है फिर ठीक है। क्योंकि मुआशरा जितनी भी कदगने लगाए, जो चाहे करे, कह दो बंद के जितने भी सलासिल होते हैं, आपको तो इल्म है कि लिखने वालों पे बड़ा बड़ा दौर गुजरा है, तो लिखने वाले, जो लिखने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, वो कहता रहता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। तो जो सीनियर्स होते हैं, जो असातिज़ा हैं, ज़ाहिर है उनकी इज़्ज़त बनती है, क्योंकि उन्होंने एक दौर गुजारा है, वो पूरा एक कलाम लेके आए हैं, एक दौर लेके आए हैं शायरी का, तो उनकी इज़्ज़त तो बनती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ के उन जैसा बन जाएंगे या उनके साथ जुड़ के लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे तो फिर गलत है। बिल्कुल। फिर आप शेर की इज़्ज़त नहीं कर रहे, आप उस बंदे की भी इज़्ज़त नहीं कर रहे। वैसे भी आपसे हमने सुना कि आप जब 9th क्लास में थे तो जब कोई पेपर होता था तो उसके अंदर आप अपने पास से अशार बना कर तहरीर करते थे कि आपको याद नहीं रहती। वो एक तो उससे आपने इस सिलसिले का आगाज़ किया, इसमें कितनी सदाकत? ये खैर सदाकत तो है इसमें, एक सच्ची अच्छा। बात है। क्योंकि तो शुरू वो भी घर वहीं का- से हुआ ये सिलसिला? ये ऐसे ही शुरू हुआ, बस ये एक समझ ले एक इत्तेफाक था, हादसाती तौर पे जो है ना वो ये काम सही। शुरू हुआ। क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, अब्बा जी भी काफ़ी माशाल्लाह जो है उनका मुताला बहुत ज़्यादा है और अभी तक मुझसे ज़्यादा है, हाँ। और वो एक बहुत बारीक बीन इंसान है। सही। देखते हैं, परखते हैं चीज़ों को और फिर राय भी रखते हैं। सही। और उनसे बहस भी होती है अक्सर, तो उनसे ही ये जो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला था शुरू हुआ। उनके पास किताबें थीं, खैर वो मुझे बहुत कम कहते थे कि पढ़ा करो, सही। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि इंसान खुद अपने अंदर से देखता है, सही। और मेरे ख्याल में ये उनकी सोच बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही। और उनकी वजह से ही मैंने जो है तो आपने कंपटीशन में शुरू कर दिया, बस बस ठीक है, कहा, भजन पढ़ते हैं तो मैंने भी पढ़ना है, तो वो बस पढ़ना शुरू किया उसी तरह से। फिर ये होता था कि मुझे याद नहीं होती चीज़ें, मेरा हाफिज़ा बहुत कमज़ोर है। सही, किसी लिहाज से। तो वो मैं फिर बचपन में ये करता था कि 9वीं 10वीं में जब पेपर होता था, टेस्ट होते थे, क्लास के अंदर टेस्ट हो रहा है आपका, तो मैं वहाँ पे जो मजमून आते थे उर्दू के या कोई भी दूसरे माशरती और उनके सवाल, इस तरह के जो सवालात होते थे, तो मैं अपने शेर लिख देता था, और वो अक्सर बेवजन होते थे और अभी भी बड़े बेवजन होते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक एक ऐसे अजीम इदारे के साथ रहा है जहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं। हम उस जानिब चलेंगे और उस सारे माहौल के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आपसे आपकी खूबसूरत सी नज़्म सुनना चाहेंगे। अगर आप नज़्म मैं सुना देता हूँ, नस्सी सुनेंगे आप जैसी नज़्म सुनाएं, क्योंकि आपकी नज़्म के उन्वानात अमूमन नदारत होते हैं, तो फिर बंदा परेशान ही रहता है कि आपसे किस चीज़ की फरमाइश की जाए। उन्वान से मुझे शायद मसला है, इस वजह से चले मैं आपको नस्सी नज़्म सुनाता हूँ। जी, नस्सी नज़्म। इंसान फर्ज किया गया था, वाह। इंसान फर्ज किया गया था, इसके हर जुज़्व में ख्वाबों और ख्वाहिशों की चाशनी को भरा गया। दर्द को, दुख को, जज्बात की दोरंगी को इंसान के फ़र्ज किए जाने के बाद इस पर फ़र्ज किया गया। बहुत अच्छे। इंसान फर्ज किया गया था, इसके हर जुज़्व में ख्वाबों और ख्वाहिशों की चाशनी को भरा गया। दर्द को, दुख को, जज्बात की दोरंगी को इंसान के फ़र्ज किए जाने के बाद इस पर फ़र्ज किया गया। खुशी को वक्तन फ़वक्तन दर्द के एहसास की फ़ौक़ियत के लिए मसावी करार दिया गया। क्या बात। खुशी को वक्तन फ़वक्तन दर्द के एहसास की फ़ौक़ियत के लिए मसावी करार दिया गया। इर्तिक़ा की कहानी दायमी है और इब्तदा की कहानी बांट दी गई है। मवाज़ने के बग़ैर सवाल का जवाब भी पैदा नहीं किया गया। मवाज़ने के बग़ैर जवाब का सवाल भी पैदा नहीं किया गया। हर शय को फ़र्ज़ कर लेने के बाद उसका रद्द भी लाजिम करार दिया गया। शायद मौत का फ़र्ज़ किया जाना ज़िंदगी से पहले की दास्तान है। बहुत अच्छे। या मौत ज़िंदगी की तन्हा औलाद है, इसीलिए मौत की उम्र सबसे कम है। जिस्म और रूह एक दूसरे पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया।
बेहतर को चंद एक पे फोकियत थी, बेहतरीन को बेहतर पे और बेहतर को सब पे। बहुत अच्छे। बेहतर को चंद एक पे फोकियत थी, बेहतरीन को सब पे और बेहतर को बेहतरीन पे। समझना जितना आसान है उतना मुश्किल समझाना। इंसान फर्ज किया गया था क्योंकि इंसान का जवाब बदलता रहता है। जैसे हिसाब में एक्स फर्ज किया जाता है किसी कीमती चीज़ की औकात का अंदाज़ा लगाने के बहुत लिए, अच्छे। वैसे ही इंसान फर्ज कर लिया गया था और बाकी दुनिया इंसान की औकात का अंदाज़ा लगाने के लिए फर्ज कर दी गई। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या अच्छा, बहुत दाद वैसे। हाय बस हाय। ये नसरी नज़्म। ये एक क्या ख्याल था, इस ख्याल की बुनियाद के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे ये एक बात है, इसमें आप हिसाब किताब जो है, जो मैथमेटिक्स है, उसके भी उसूलों को आप लेके आ रहे हैं। जब आप एक्स की वैल्यू किसी कीमती चीज़ के साथ आप मुशाबे करार दे रहे हैं, फिर आप आ रहे हैं उसके फ़र्ज किए जाने पे, उसके इर्तकाई दौर पे, उसकी तख्लीक के ऊपर। तो ये ख्यालात कैसे कैसे बनते हैं? मेरे ख्याल में हर नज़्म का एक मसला होता है जो उसका अपना मसला होता है। नज़्म अपना मसला तलाश कर लेती है। जब आप अपना मसला नज़्म के अंदर पिरो रहे होते हैं तो नज़्म का भी एक मसला बन रहा होता है जो नज़्म के अंदर ही होता है, जिसको तो वो कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसमें जान आ जाती है। उसमें जान आ जाती है। यही बात है कि नज़्म जो होती है, अब उसको हम उन चीज़ों से मिलाएंगे जो चीज़ें जो हैं वो रोज़मर्रा इस्तेमाल में हैं, जो चीज़ें हम हर रोज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमें पता होता है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम उनको ज़िंदगी के साथ किसी भी मुताबिकत से उनका मवाजना नहीं कर पाते या कर नहीं रहे होते। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हमें ऐसा करने से नई जहतें मिलती हैं, बिल्कुल सही, और जो शायरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही, जदीद दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा अवैस भी ज़रा उस गवर्नमेंट कॉलेज के माहौल के बारे में बताइए कि उसका कितना किरदार रहा आपकी इस तख्लीकी जो सलाहियत है उसको उभारने? गवर्नमेंट कॉलेज एक पुरानी दास्तान है मेरे हवाले से भी। 2009 ये भी तो आप जामिया पंजाब में ज़ेर तालीम है। हम नाज़रीन को बताते चलें कि अवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अपना प्यारा कलाम हमें सुना रहे हैं, उससे मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी जामिया पंजाब, जो कि एक और बड़ा नाम है, उसमें फिल्म एंड टीवी में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसका मैं हवाला इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में देखा करते थे कि आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, आप उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में। तो उस माहौल के बारे में थोड़ा सा बताइए। गवर्नमेंट कॉलेज 2009 में मेरा आना हुआ। सही। मैंने इंटर की तालीम वहाँ से हासिल की। उसके बाद मैं वकील बनना चाहता था, जैसे सब मतलब मेरे टाइप के लोग होते हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि अब मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये तालीम जारी रखनी चाहिए। तो मैंने वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स में जो है दाखिला लिया। उसके बाद वहाँ पे दूसरे सेमेस्टर के बाद मेरा जो रुझान था, जो 9वीं 10वीं में हरकतें करता था, वो दोबारा से हरकतें मैंने शुरू की। सही। और उन हरकतों को किसी ने नोट किया और किसी ने जाके बता दिया अच्छा। बड़े लोगों को कि ये बंदा भी इस तरह की हरकतें करता है। ठीक तो वहाँ से लोग जानना शुरू हुए। फिर आहिस्ता 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 जो है रिप्रेजेंटेशन भी हुई, मुकाबले भी बोले, तकरीर, पंजाबी तकरीर में करता हूँ, पंजाबी से मुझे खास मोहब्बत है। सही। और मैं फिर अच्छा वैसे पंजाबी में खुद भी कुछ लिखा आपने? पंजाबी में मैं बहुत कम लिखा है पंजाबी, लेकिन लिखा है तो कुछ पंजाबी में इनायत करेंगे? पंजाबी में मैं कोई आपको बोली एक आधी सुना सकता हूँ। जी जी जरूर फौरी जरूर। तौर पे ओदी अख विच झात मैं पाई हाँ, ते रूह च पचाल आ गया। बहुत अच्छे। ओदी अख विच झात मैं पाई ते रूह च पचाल आ गया। पचाल आ गया। मेरी जिंदड़ी ये बाबूला शटापू मैं दूजा घर टप ना सकी। मेरी जिंदड़ी ये बाबूला शटापू हाय हाय हाय। मैं दूजा घर टप ना सकी। इस तरह की कुछ नज़में ली क्या हैं, एक दो क्या अभी याद कहने, नहीं क्या है। कहने, वाह वाह। पंजाबी में भी एक सिलसिला चल रहा है, उसको मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ाने चलें उसकी कंटिन्यूटी भी बात करेंगे। अब आपने पहले हमें एक नसरी नज़म सुनाई, हम चाहेंगे आप हमें एक पाबंद नज़म भी सुनाएं। अच्छा ये एक किस्म के ना यूं एक नमूने के तौर पे पेश कर रहे हैं कि इतनी प्यारी प्यारी चीजें माशाल्लाह आपके पास हैं, तो एक पाबंद नज़म। जी मैं ज़रूर। हम सफ़र फेंकते हैं, हम सफर फेंकते हैं, हम सफ़र फेंकते हैं, पैर की सूनी जगह दश्त में आसानी है। हाँ, हम सफ़र फेंकते हैं हद्दे नज़र से भी परे, अगली सब मंजिलों से अगले सफ़र से भी परे। वाह।
رات سے آگے کہیں نور کمر سے بھی پرے، زیر گرداب اور مد و جزر سے بھی پرے، حرمت پیر کو لبریز تو لیکن نہیں ہونے دیتے۔ کیا ہر نئی گرد کا بھی نام و نسب جانتے ہیں، ہر مسرت سے ملاقات ہے سب جانتے ہیں، ہم مگر درد کا احساس غضب جانتے ہیں، لفظ سے مٹنے نہیں دیتے کسی لفظ کی روح، بات سے جانے نہیں دیتے خیالات کی بو، جو بھی جس طرح اترتا ہے تخیل پہ اسے ویسے عیاں کرتے ہیں، خود کو بھی کھوجتے ہیں جسم جہاں کرتے ہیں، ہم حریفوں سے محبت کا تعلق تو نہیں رکھ سکتے، ہاں رواداری مگر رکھتے ہیں، ہم سفر پھینکتے ہیں منزلوں کے سارے نشانوں سے پرے، اس جگہ پر بھی جہاں کوئی مکین ہوتا نہیں، پیر آنکھ لگ جائے بھی تو پیر مگر سوتا نہیں، ایک سفر تیری طرف کر لیا نادانی ہے، کیا کہنے، پیر کیا تو کہنے، دوبارہ سنائیے ذرا۔ ایک سفر تیری طرف کر لیا نادانی ہے، پیر تو شل ہیں اب، پیر کی سونی جگہ دشت میں آسانی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت ڈال بہت ڈال، بڑی بہت شکریہ شاداب۔ کیا نظم میرے اچھا یقین کریں آج نا وہ اکثر ہوتا ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ایڈورٹائزمنٹ کا بھی ایک کام ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ ڈفرینٹ کلائنٹ سے بھی ملتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اسکرپٹ لکھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، تو کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو انٹینگل کر رہی ہوتی ہے اور آپ کا کام ہوتا ہے کہ یار جو بندہ مجھے بات بتا رہے سناتا رہے، میں سنتا رہوں کہ یہ کیا اچھا کہہ رہے ہیں، اس کے خیال میں ایک جدت ہے۔ تو آج جو ہے باقی پروگرامز کے نسبت آج مجھے آپ سے گفتگو سے زیادہ آپ کو سننا مزیدار لگ رہا ہے، وہ لوگ بھی یہ مطلب کہتے ہیں رسپانس کے اندر کہ یار آپ بہت بول رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا کم بولیں، لیکن آج دل کہہ رہے ہیں کم بولنے کا، آپ اتنا اچھا سنا رہے ہیں۔ خیر گفتگو بھی ہمارے پاس جو ہے فارمیٹ کا حصہ ہے، تو ایک سوال اور عموماً نئے لکھنے والوں کے ذہن میں بڑی مطلب اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی بڑے بوڑھے سے یہ سنا کہ اگر آپ کو اپنے استاد کے 2-3 ہزار اشعار یاد نہیں ہیں تو آپ شعر و شاعری کرنے کی جسارت نہ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اشعار زیادہ یاد ہونا یا بہت زیادہ پڑھ لینا، کیا یہ اس چیز کی صنعت ہے کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں؟ اشعار یاد ہونا ایک علیحدہ بات ہے، میرے خیال میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یاد ہو، وہ ظاہر ہے ایک پریکٹس کا ایک حصہ ہوتا ہے، آپ کو وہ کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ کو یاد رکھنے پڑتے ہیں یا آپ کو بار بار دہرانے پڑتے ہیں، کیونکہ شعر اکثر اوقات اشعار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پہلی بار میں تو کھلتے ہی نہیں ہیں آپ پہ، جو آپ کو بار بار پڑھنے سے اور کسی تجربے سے، بعض اوقات آپ کسی تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہ شعر سمجھ میں آتا ہے اور آپ پہ کھلتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ تھا اچھا، تو اس وجہ سے میرے خیال میں اب استاد کی بات ہو تو میرا کوئی ایک جس کو آپ کہیں گے کہ مخصوص استاد تو نہیں ہے، ادب ہی میرا استاد ہے، تو لٹریچر ہی ہے، یہ شاعری ہی ہے، یہ دوست ہیں، ٹھیک ہے، جو استاد ہیں سب، تو ان کے ساتھ ہی بندہ سیکھتا ہے۔ میرے خیال میں معاشرہ آپ کا استاد ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، اور انہی چیزوں سے آپ کو زیادہ سیکھنا چاہیے، بقدرے کہ آپ کسی ایک انسان کے اوپر فوکس کریں، آپ کہیں کہ میں اس سے ہی سیکھنا چاہوں گا، کیا بات، ٹھیک ہے، آپ لے سکتے ہیں جتنی بھی آپ چاہیں، امداد تو ظاہر ہے انسان لیتا ہے۔ اچھا فنکار کا کینوس بہت بڑا ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی میوزیکل بڑی پیاری سی چھوٹی سی فلم تھی، اس کے اندر ایک اسپینش وہ ایک مووی تھی، سیمی اسپینش ہم کہہ سکتے ہیں بیکاز اس میں انگلش بھی تھی، اس میں وہ جو بچہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو میوزک سے بڑا شغف ہوتا ہے، تو وہ جس بندے کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو اس بندے کی یعنی جو ایک بہت بڑا موسیقار اپنے دور کا گزرا ہوا ہوتا ہے، اس کی گانے کے اندر ایک لیرکس میں وہ ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زبان موسیقی ہے اور دنیا میرا خاندان ہے۔ واہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فنکار اتنا وسیع ہوتا ہے؟ بالکل، فنکار اس سے بھی وسیع ہوتا ہے، اس سے وسیع کیا؟ اس سے بھی وسیع ہوتا ہے، پروٹو شلوٹو پہ بھی اس کے کوئی رشتہ دار رہتے فنکار میرے خیال میں فنکار خود ایک دنیا ہوتا ہے، صحیح، اس نے صرف چیزوں کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس چیز کے اوپر اپنا کون سا رنگ اتارنا ہے۔ صحیح، فنکار کے پاس صرف ایک یہ فن ہوتا ہے کہ وہ اپنا رنگ اتارتا ہے چیزوں کے اوپر، صحیح، اور بعض فنکار ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے رنگ سے نئی چیزیں بنا دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ویسے ماجد آپ کی بات کاٹوں گا کہ آپ نے خود ہی یہ بات مجھے بتائی تھی کہ مختلف جو کمیونٹیز ہیں اور مختلف جو علاقہ جات ہیں ان کی بھی آپ لوگوں نے لٹریچر کو کافی زیادہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، اس کو فرانس کی بات کر لی جائے، اٹالین بات کر لی جائے، انگلش تو بہت زیادہ پڑھی ہوگی یقیناً، اور اردو تو پھر زبانی اپنی، تو کون سی ایسی قدر مشترک ہے ان تمام
معاشروں میں جو کہ آپ نے ان سب کلاموں میں دیکھی؟ भूख तो सब में मुश्तरक है। भूख का चूंकि मेरे ख्याल में तो अब सबसे बड़ा जो आप कहें कि मसला ये होता है भूख का, भूख सब में मुश्तरक होती है। और दर्द का एहसास जो है ना, दुख का एहसास, वो काफ़ी मुश्तरक है। बल्कि रूसी लिटरेचर के अंदर दुख के एहसास को तवील करके उसको तूल दिया जाता है। अच्छा, रूसी लिटरेचर में आप देखेंगे तो उसको वो कोई भी एहसास होगा ना तो वो उसको बहुत तूल देंगे। अच्छा, ऐसी अक़वाम को तो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता माना जाता है, तो क्या भूख उनका भी मसला है? उनका भी मसला है, भूख हर बंदे का मसला है, भूख फनकार का मसला है बेसिकली। क्योंकि क्या जामिया स्टेटमेंट। हमारे यहाँ पे चूंकि एक रवायत भी है ये सुनी सुनाई के जो फनकार लोग होते हैं वो अक्सर भूखों मरते हैं। तो खैर अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा तब्दील हो रहा है शायद, और होगा भी आगे जाके ठीक ठाक, अल्लाह खैर करेगा। और फनकार को उसकी मनपसंद जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, और मनपसंद खाना भी खिलाना चाहिए। खैर खाने की बात अलग है। अच्छा चले, हम लोग तो भूख को फिर उसके लग़वी मानों में ले रहे हैं ना। जी जी। अच्छा, तो एक और नज़्म हम आपसे सुनेंगे, प्रोबेबली एक आखिरी नज़्म, वो आप हमें नज़्म सुनाएं या गज़ल सुनाएंगे, हम आप पे छोड़ते हैं। मैं नज़्म सुनाऊंगा। नज़्म से बड़ी मोहब्बत है आप। मैंने क्या ख्वाब जलाए थे तेरे रास्ते में, मैंने क्या ख्वाब जलाए थे तेरे रास्ते में, मैंने क्या ख्वाब जलाए थे तेरे रास्ते में, मैं तो खुद दूसरों के बोले हुए लफ्ज़ों से अपने जबड़ों के तले फैली हुई भूखी बिलखती हुई इस जीभ की तसल्ली के लिए बोलता हूँ। बहुत अच्छे। मैंने क्या ख्वाब जलाए थे तेरे रास्ते में, मैं तो खुद दूसरों के बोले हुए लफ्ज़ों से अपने जबड़ों के तले फैली हुई भूखी बिलखती हुई इस जीभ की तसल्ली के लिए बोलता हूँ। मैं तो खुद रस्म का पाबंद हूँ, अक़दार के जिंदान में जकड़ा हुआ हूँ, मैं कहाँ तेरी ज़बां बोलूँगा, मैं कहाँ वक्त पे फैले हुए जिंदान का दर खोलूँगा। मैं फ़कत इतना करूँगा कि तेरे बाद कभी अपनी दुरंगी से थक जाऊँगा तो सो लूँगा, या तेरे लफ्ज़ के बेरहम मानी पे कभी रोलूँगा, वो सभी लफ्ज़ जो तूने भी किसी और से सीखे होंगे। क्या कहने, क्या कहने। मैं फ़कत इतना करूँगा कि तेरे बाद कभी अपनी दुरंगी से थक जाऊँगा तो सो लूँगा, या तेरे लफ्ज़ के बेरहम मानी पे कभी रोलूँगा, वो सभी लफ्ज़ जो तूने भी किसी और से सीखे होंगे। दुख जो आएगा तो क्यों कर मैं कहूँगा कि खुशी आई है, दुख जो आएगा तो क्यों कर मैं कहूँगा कि खुशी आई है। दर्द होगा तो उसे लुत्फ का एहसास समझकर किसी महबूब का तोहफा तो नहीं कह सकता। दर्द होगा तो उसे लुत्फ का एहसास समझकर किसी महबूब का तोहफा तो नहीं कह सकता, या किसी गम में तमाम उम्र तो अफसुर्दा नहीं रह सकता। तू मेरे दुख में हमेशा ही मेरे साथ रहा, क्या भला दुखी उगाए थे तेरे रास्ते में, तू खुशी में क्यों मेरे साथ नहीं रह सकता। मैंने तो फूल बिछाए थे तेरे रास्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत दाद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे वो दोस्त जो कि लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी अपनी, जाहिर है हर बंदा अपनी कैपेसिटी में ही लिखता है। क्या मशवरा आपने? मशवरा मेरे ख्याल में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। हर बंदे की अपनी राय होती है, बाज़ आरा कुछ लोगों की ऐसी भी है कि बहुत से ऐसे शायर गुजरे हैं और बड़े अच्छे कद के शायर गुजरे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने मुआशरे को तो पढ़ा है। हाँ, ऑब्जर्वेशन तो ऑफ कोर्स। तो आप मेरे ख्याल में आप किसी न किसी तरीके से हर चीज़ को पढ़ते रहें, उसको परखते रहें, क्योंकि वो जो परखने की एक आदत है ना, वो आपको नई चीज़ें करने पर राग़िब करती है। बिल्कुल सही। और अगर आप मरगूब हो जाते हैं तो आप एक अच्छे फनकार हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, असूलन हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसके मुताबिक प्रोग्राम इसका एंड हो गया, लेकिन एक नज़्म और आपसे सुनना चाहूँगा। नज़्म सुनेंगे? हाँ जी, एक नज़्म और उसके बाद शायद मेरा ख्याल है कि मैं इजाज़त भी ना लूँ। चलिए एक नज़्म मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे लिखने की आदत है, मुझे लफ्ज़ों को सूली पर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे लफ्ज़ों को सूली पर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ख्यालों के समंदर को स्याही रोशनाई से नुमायां करते रहने में कोई वक्फा नहीं आता। ज़बां की साख्त की औकात की हर लय परखने में
कभी लज्जा नहीं महसूस हो पाती। हाय हाय। मुझे नज़मों के मौजू खोखले उन्वान घड़ने में, बहुत उड़ियाँ ख्यालों से किसी के कान भरने में हया का झोल आ जाए, कभी ऐसा नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह मुझे वाह वाह वाह। नज़मों के मौजू खोखले उन्वान घड़ने में, बहुत उड़ियाँ ख्यालों से किसी के कान भरने में हया का झोल आ जाए, हाय हाय हाय। कभी ऐसा नहीं होता। क्या मगर कहने। जो चाहता हूँ खुद में, जिसका ख्वाब रखता हूँ, कभी वैसा नहीं होता। हाय। कभी सोचूं कि उरियानी हर एक हद तक ज़बां पे ला नहीं सकता। हाँ। मैं जो महसूस करता हूँ वो सब बतला नहीं सकता। बहुत अच्छे। मैं सबके सामने मंजर पे वैसे आ नहीं सकता। आहा। अगर मैं धूप को छाऊं कहूँ या हाथ को पाऊं कहूँ तो लोग मुझको सुनना चाहेंगे। अगर मैं धूप को छाऊं कहूँ या हाथ को पाऊं कहूँ तो लोग मुझको सुनना चाहेंगे। यही डर है कि कोई शख्स मुझसे मुंह ना मोड़े, आहा। कोई अपनी तवज्जो मेरे चेहरे मेरे लफ्जों से हटाए ना। आहा। मैं सबके कान भरता जाऊं, कोई रोक पाए ना। वाह वाह। मगर ये डर भी अपने आप में बंदिश है नज़मों पर। आहा। रिवायत एक आमिर है ज़माने भर के लफ्ज़ों पर, वाह। कि हर एक सोच बांधी है रिवायत की। तो फिर कागज़ के पन्नों पर रिवायत की ग़ुलामी का मैं कोई बाब क्यों लिखूं? आहा। अगर ये ख्वाब भी लफ्ज़ों ने जन्मे हैं तो अपने ख्वाब क्यों लिखूं? बहुत अच्छे। मगर लिखना रिवायत है, मुझे लिखने की आदत है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। वैसे ही बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद अवैस भाई की खूबसूरत खूबसूरत नज़में, इनकी खूबसूरत गुफ्तगू। यकीनन आपने आज का प्रोग्राम भी बहुत एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम आपकी शायरी से मुताल्लिक अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समाअत और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।